Good morning, everyone. Welcome you back in the topic trigonometry. In this topic, as we have already done with some standard angles values, but before that, let us revise all the formula again, giving you some time to revise all that. Also, sine theta definitions. First of all, sine theta is opposite side upon hypotenuse, cos theta is adjacent side upon hypotenuse, tan theta is opposite side upon hypotenuse. The reciprocal of sine is cosec, reciprocal of cos is sec, and reciprocal of tan is cot. So cosec theta is equals to 1 by sine theta, sec theta is equals to 1 by cos theta, and tan theta is equals to 1 by cot theta. Similarly, tan theta we have sine theta upon cos theta, and cot theta we have cos theta upon sine theta. Need to remember it. Next, after this, we have discussed with these standard angle values of sine, cos, and tan. Only these you all will remember. I told you only to remember just sine 30. What is sine 30 is equals to 1 by 2. If sine 30 is 1 by 2, sine 60 will be equal to root 3 by 2. Then cos 30 is equals to root 3 by 2, and cos 60 will be equal to 1 by 2. The two values you need to remember, cos 60 and sine 30, right? Sine 0 is 0. So today we all will be learning the values of 0 and 90. First of all, sine 0. Sine 0 is 0, right? Cos 0 is 1. Sine 0 is 0, cos 0 is 1. Sine 90 is 1 and cos 90 is 0. So आप लोगों को याद रखना है जीरो कौन सी वैल्यू है. तो साइन की जीरो वैल्यू जीरो है एंड कॉस की 90 वैल्यू जीरो है. ये दो चीज़ें इफ़ यू रिमेंबर देन ऑलमोस्ट योर वर्क ऑफ रिमेंबरिंग दिस ऑल फॉर्मूले विल बी डन. ओके, तो ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू रिमेंबर इट, बट व्हेन वी एक्चुअली sit together, that time I will just get it done all together from you. Okay, so don't worry, we'll go for the next one. Yesterday few doubts I could get, so I'll solve that quickly without wasting much time. So first of all, I'll be solving question number f. F was one of the doubt from the student, so I'll just solve it. Cos 0, so cos 0 is 1, right? Cos 90 is 0, that's it. Cos 0 is 1. Sin 45 1 upon root 2 plus sin 0 is 0. Sin 90 is 1 minus cos 45 1 upon root 2 plus cos 60 is 1 by 2. ठीक है. So now here I can write it as root 2 plus 1 upon root 2 cross multiplying. Here 1 plus 2, 1 by 2 is 3 by 2 minus 1 upon root 2. So this is going to become root 2 plus 1 upon root 2 into other bracket 3 root 2 minus 2 upon 2 root 2. This is the way how I got it. So numerator can be multiplied and denominator the answer is 4 surely. You can check. Numerator we can multiply. So root 2 into 3 root 2 is 6. Root 2 into 2 is minus 2 root 2. 1 into 3 root 2 is plus 3 root 2 minus 2. So 6 minus 2 is 4 plus 3 root 2 upon 4 is your required answer. We can check again. 2 6, right? Minus 2 root 2, right? Minus 2, correct. 4. Okay. It's just root 2. So here there was an error. Is only root 2. Okay, so that is the answer. This is the answer. Fine. We'll go for the H question, which was a difficulty from one of the child. So we'll discuss about that question as well. H. So quickly, I'll solve the H question. It is 5 into cosec square 60. अभी cosec square 60 मतलब sin 60. Cosec is a reciprocal of sin. That's the reason I normally in the beginning itself I told you that remembering formula is extremely important at the same time, because all that will be useful in the further part of the topic. So in trigonometry, that is the basic deal here. Unless and until you remember the formula, you will never get the questions after that. ठीक है. तो कोसेक स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 का उल्टा. साइन 60 क्या होता है? रूट 3 by 2, सो इट इज 2 by root 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30. सेक स्क्वायर 30 इज कोसेक का उल्टा. कोसेक का उल्टा सॉरी साइन का उल्टा, सॉरी कॉस का उल्टा. सेक कॉस का उल्टा सेक 30 कॉस 30 2 by root 3 सेम आता है. 2 by root 3 द होल स्क्वायर.
minus tan 45, so it is 1 whole divided by sin square 30. Sin square 30, sin 30 is 1 by 2 the whole square plus cos square 30 root 3 by 2 the whole square. This is how I got it. So now I'll just square everything. Let's look at the numerator. It is 5 into 4 by 3 plus 4 into 4 by 3 minus 1 divided by 1 by 4 plus 3 by 4. So the denominator I'm getting 1. So even if I don't write denominator, it's okay now. So it is only numerator. So 20 by 3 plus 16 by 3 minus 3 by 3. 1 has 3 by 3 I wrote. So 36 minus 3, 33 by 3, which is I think 11. Check karte. So it is 36 minus 3, 33, right? And then yes, correct, it's 11. The answer is there for you. ठीक है. थोड़ा सा जी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था आई थिंक, तो वो अभी सॉल्व करते हैं. जी क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, इट वोंट टेक मच टाइम. तो चलो जी क्वेश्चन. इट्स साइन 30 1 by 2 plus tan 45 1 plus cosec 60. It is 3 2 by root 3 upon sin 30 1 by 2 cos 60 root 3 by 2 plus tan cot 45 1. ठीक है. So numerator I get here as 3 by 2 minus 2 by 3 root 3 sorry upon, over here is again 3 by 2 plus root 3 by 2. Okay, so 1 plus half I did in both the place, numerator and denominator. So here in the numerator the denominators are not same, so I get 3 root 3 minus 4 divided by 2 root 3 whole is been divided by, numerator is same here, denominator is same here. I get 3 plus root 3 upon 2. So we can go for reciprocal. 3 root 3 minus 4 upon 2 root 3 into 2 upon 3 plus root 3. 2 and 2 get cancelled surely. So 3 root 3 minus 4 upon, I can multiply by root 3 here. I get 3 root 3 plus 3. 3 can be taken common. 3 root 3 minus 4 upon 3 into bracket root 3 plus 1 from the denominator. So root 3 minus 1 and root 3 minus 1 are the rationalizing factor. You can multiply and get the answer done. Okay, so this was a very simple question again. Okay, maybe this calculation you're finding difficult, that is understood, because your root and all, when it comes, it just seems to be odd, very odd answers. But these are not difficult, it's easy. Few questions you practice and the work is done. Okay, let's go for the next question today. These are the today's question number 2 and question number 3, question number 4. These are the same questions as we have done in the previous one, but these are easier than that of those questions which you have solved yesterday. So ये easy कैसा है? I have to show that means I know the answer today. Okay, so let us check what I have to do here. Show that, it means what I have to do here. This is LHS, which is 2 tan 30. I'm talking about question number 2 upon 1 plus tan square 30, that is equals to RHS, which is sin 60. So while taking, you will take LHS and RHS separately. You will be substituting those values, calculate it and prove that they are equal, they are same. So let us check. 2 tan 30. So tan 30 is, I think, 1 upon root 3 upon 1 plus tan square 30 is 1 upon root 3 the whole square. So here I get 2 by root 3 in the numerator. In the denominator, 1 plus 1 by 3, which can be equal to 2 by root 3 divided by 3 plus 1, 4 by 3, which can be 2 by root 3 into 3 by 4. It would be 1 the 2 the, so it is 3 upon 2 root 3. It's like that.
ठीक है. नाउ वन कैन कंसिडर दिस इज मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर, बट आई कैन मल्टीप्लाई बाय रूट 3 हियर टू make or to rationalize the denominator if possible, if required. So I get 3 root 3 upon 6, which gives me 3 1s are 3 2s are 6, root 3 by 2, which is equals to sin 60. You can check here, root 3 by 2. So therefore we have LHS is equals to RHS, and your question is done. So this is how you have to also solve these questions. ठीक है. अभी देखो, the next one is tan square 45 plus 1 minus tan square 45 upon 1 plus tan square 45. So it would be, I think, 0, because tan square tan 45 is 1 and the square is 1. 1 minus 1 is 0. So LHS you get as 0, and RHS cos 90, of course it is 0. So it is equal, LHS equals to RHS. You can solve, try these questions. द सेम थिंग इज फोर्थ वन. फोर्थ के लिए थोड़ा सा अलग ट्रिक यूज़ किया है. इट इज़ गिवन ए इज इक्वल्स टू 30, बी इज इक्वल्स टू 60, एंड देन यू हैव टू वेरीफाई इट. तो लेट अस सी हाउ कैन आई डू दैट. तो ए क्वेश्चन आई विल सॉल्व एंड शो इट टू यू. ऑल अदर क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इट ऑल बाय योरसेल्फ. ठीक है. तो बस मैं ए दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम सी दिखाता हूँ, या फिर मैं डी दिखाता हूँ इफ़ यू वांट. ठीक है, चलो डी दिखाता हूँ, सी ए एंड डी दिखाता हूँ. तो ए क्वेश्चन आपको क्या करना है, एल एच एस लो, लिया, साइन ऑफ ए प्लस बी लिया. ठीक है. तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए कितना है 30, प्लस बी कितना है 60. तो इजंट इट दिस वुड बी साइन ऑफ 90. 30 प्लस 60 साइन ऑफ 90. साइन ऑफ 90 कितना होता है 1. अभी आर एच एस देखते हैं. हाउ इज दैट आर एच एस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. इजंट इट, इन ट्रिग्नोमेट्री वी नो डॉट इज मल्टीप्लीकेशन. सो वेदर यू राइट और वेदर यू डोंट राइट, द मीनिंग इज मल्टीप्लीकेशन. सो इट विल बी साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60. ए एंड बी का वैल्यू बस रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं. साइन 30 इज 1/2 इंटू कॉस 60 इज 1/2 अगेन, प्लस कॉस 30 इज रूट 3 by 2 into again root 3 by 2. All these questions are just to remember the values, nothing else. तो ये सॉल्व करते करते आपको क्या हो जाएगा, वो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे. तो दिस इज 1/4 प्लस 3/4 विच इज गोइंग टू गिव यू वन आंसर. सो आई होप यू गॉट इट. एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. सो सिंपल, सो वेरी सिंपल. तो बस आपके कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करना है एंड यू गेट योर थिंग्स डन. ठीक है. कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं आता, जैसे कि अभी दिखाता हूँ मैं आपको. कभी कभी ऐसे आंसर आता है 2/√2/2 ऐसे आता है, एंड विच यू हैव टू मेक इट इक्वल टू साइन ऑफ 45. साइन ऑफ 45. तो डू यू थिंक यार ये इक्वल है. अभी देखो, ये है √2/2 और साइन 45 क्या है 1/√2. तो ये दोनों इक्वल है क्या. तो in first go you will never feel like they are equal, but let me tell you, if you multiply by √2 and √2 you will get it, yes they are equal. ये इक्वल है. ये कभी कभी हो जाता है आपके LHS RHS में. LHS में अलग आता है, RHS में अलग आता है, लेकिन when you simplify you will feel that, you will understand that it is correct. तो that's the only difficulty you might face in these questions. तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको, D दिखाता हूँ. ठीक है, D क्वेश्चन दिखाता हूँ. तो D क्या करना है हमें, LHS लो अगेन, विच इज़ 1 माइनस कॉस बी है ना. तो कॉस 60 हो जाएगा. कॉस 60 मतलब कितना हो जाएगा, कॉस 60 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2. तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2 अपॉन 3/2. अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाता है 1/2 इंटू 2/3, बराबर है ना. 1/2 इंटू 2/3. तो कितना हो जाएगा 1/3 विच वुड बी 1/√3. देख लो, राइट ना. अभी आर एच एस देखते हैं, विच इज साइन बी मतलब साइन 60. साइन 60 कितना होता है √3/2 अपॉन 1 प्लस 1/2. ये तो पता है आपको. सो √3/2 अपॉन 3/2. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू √3/2 इंटू 2/3. दिस एंड दिस गेट कैंसल, इट इज √3/3. अभी यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था इससे पहले भी, कि दोनों लगने के लिए इक्वल तो लगते नहीं है. नाउ यू माइट फील कि अरे नहीं ये तो गलत हो गया.
है ना. और देन व्हाट वी डू इज वी चेंज द क्वेश्चन और वी ट्राई टू मैनेज टू ब्रिंग द क्वेश्चन इन द सिमिलर वे, और एल्स वी से दैट कि नहीं मैथ्स डिफिकल्ट है, मुझे नहीं आता, है ना. सो दिस इज द प्रॉब्लम, इज यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय रूट 3. एक स्टेप पूरा हाथी खा गया, बस पूछ रह गई, है ना. इतना बड़ा हाथी खा गया, बस पूछ के लिए हमें चिल्लाना, गालियाँ खानी पड़ती है ना. तो दिस इज सिंपल थिंग यार, सिंपल थिंग, हो गया, दैट्स इट. देखो इक्वल हो गए. तो ये थोड़ा सा स्किल आपको अभी डेवलप करना पड़ेगा, स्पेशली इन द ट्रिग्नोमेट्री यू हैव टू डेवलप ऑल दिस स्किल. ओके, इसलिए मैं बिगनिंग में ही सब कुछ बोल देता हूँ कि ये सब कुछ ज़रूरी है. तो थोड़ा सा आप लोग अगर फॉलो करेंगे, थोड़ा सा मुझे कैजुअली लेना बंद करेंगे ना, तो थिंग्स विल बी वेरी फाइन. तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 completely by you. And then we are going ahead with the next concept, most important and interesting concept, that is solving the equation. Okay, equation solving in sense finding the value of x, you know that. Solving equation का मतलब क्या होता है? Finding value of x. Now ये जो equation है ये कैसे है? ट्रिग्नोमेट्रिक equation है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना इतना डायरेक्ट नहीं होता जैसे हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा वियर्ड टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, तो इसको पहले देखते हैं. सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको यह पता होना चाहिए कि साइन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनटू एक्स. इन दो साइन एंड एक्स के बीच में कभी भी मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं होता. तो दैट्स द रीजन, अगर मेरे पास साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो ये एक्स एंड ये एक्स कैंसिल नहीं होता. इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये ऐसे नहीं होता क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है. साइन इज बिन प्रोटेक्ट, सॉरी, एक्स इज बिन प्रोटेक्टेड बाय साइन. तो जब तक आप लोग उस साइन को नहीं निकालते तब तक ये एक्स बाहर नहीं निकलेगा. ओके, वो एक्स को कैसे बाहर निकालना है वो बताता हूँ मैं, एवरीथिंग आई विल टेल यू. बट अभी ये तो समझ लो कि ये नहीं कैंसिल होता, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होता. अभी जैसे कि मैंने ये कर दिया, देखो, एक वन ऑफ माई वेरी ग्रेट चाइल्ड हैज़ डन इट. साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मैंने उसको बोला था क्या आता है, तो उसने लिया, एक 4-5 मिनट तक उसने वो सॉल्व किया. मैं बोल रहा हूँ अरे मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ यार, क्या कर रहे हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज वेरी सिंपल, इट वॉज tan एक्स आंसर, है ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स. तो मैं सोच रहा हूँ ये कर क्या रहा है, वो नीचे देख के मस्त सॉल्व कर रहा था. तो मैंने पूछा कि एग्जैक्टली कर क्या रहा, तो बोल रहे नहीं सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ. मैंने कहा ठीक है, सॉल्व करके मुझे आंसर बता. तो वो आंसर बताया, क्या बताया उसने, इन अपॉन सी ओ बताया. मैंने कहा ये कौन सा आंसर आ गया, इन अपॉन सी ओ. Then I went to him and checked in his book. You know what he had done it? He had cancelled x, s and s. देखो बचा क्या, in upon co. तो ये पागलपन नहीं करना है हमें. दिस इज नॉनसेंस, दिस इज फुलिशनेस. ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये फालतूगिरी है. तो हमें ट्रिग्नोमेट्री ढूंढना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री देखना है. तो सबसे पहला रूल जो आपको याद रखना है कि साइन ऑफ एक्स इज नॉट साइन इन टू एक्स, इट इज जस्ट साइन एक्स. एंड ये x ऐसे ही बाहर नहीं आता. ओके, इट कॉस्ट. सो रिमेंबर दैट कि ये x को आप लोग कैंसिल नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते. ओके, उतना तो समझ में आ गया. चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज, अगर इमेजिन करो कि हमारे पास साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू सिर्फ x है, तो ये x यहाँ से बाहर यहाँ पे नहीं जाता, इट इज़ नॉट पॉसिबल. या फिर ऐसे अगर इमेजिन करो कैसा था, इमेजिन साइन ऑफ x बाई 2 हो, तो ये 2 इधर नहीं जाता है, नॉट पॉसिबल. ये साइन इज प्रोटेक्टिंग दिस ऑल टर्म, और ये जो प्रोटेक्शन है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इट विल नेवर बीन रिमूव फ्रॉम इट. तो इसीलिए हाँ, क्या करना है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें क्या नहीं करना है ये सबसे पहले ढूंढना है. तो ये जो है, ये 2 आप लोग वहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं शिफ्ट कर सकते. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अभी क्या क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में सोचेंगे. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डोंट वरी. ओके, चलो देखते हैं. साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ वाई. दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू वाई. ये समझ लो पहले. मतलब साइन ऑफ एक एंगल है, दूसरा भी साइन ऑफ एंगल है, तो ये एक्स एंड वाई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ये समझ में आ गया. ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड बढ़िया कॉन्सेप्ट है, याद रखो. ये करना है हमें. ओके, ऐसा नहीं है कि ये करना नहीं है, ये करना है. तो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ वाई हो तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाता है. लेकिन अगर ऐसा हो, इमेजिन करो, साइन नहीं, सिर्फ टैन भी हो, कॉस भी हो, कुछ भी हो, टैन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टैन वाई, देन हम लोग इसको एक्स इज इक्वल टू 2y नहीं कर सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल. क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ वाई क्यों आया, क्योंकि ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गया. ऐसे साइन कैंसिल नहीं होता. अगर वैसे होता तो यहाँ पर भी टैन कैंसिल हो जाता.
ठीक है ना, करेक्ट है, तो आंसर आ गया ना x इज इक्वल टू 2y, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको कैंसिल करते हैं ऐसा नहीं बोलते, वी डोंट से दैट कि इट इज गेटिंग कैंसिल फ्रॉम देयर, ओके। हाँ, बट वन थिंग इज ट्रू, इफ tan ऑफ x इज इक्वल टू tan y देन दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, ये करेक्ट है, लेकिन tan एंड tan कैंसिल नहीं होता, ओके। तो बहुत वियर्ड सा कॉन्सेप्ट है ना, इवन आई फील दैट कि ऐसे कैंसिल तो नहीं होता लेकिन कैंसिल तो कर रहे हैं, ये क्या बात बन गई। तो ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है। देखो जैसे कि tan of 30 इज इक्वल्स टू tan of x, ऐसा हो तो इट्स वेरी क्लियर 30 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, x जो है वो 30 हो जाएगा, बराबर है ना, इज दिस क्लियर। चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स ट्राई क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन ए विल टेक 2 sin x इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। ये टू एंड साइन में ऑपरेशन है, इनटू, ऑफ कोर्स इनटू मल्टीप्लीकेशन ही होगा, राइट। इस टू को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो व्हाट डू आई गेट हियर, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू √3/2, बराबर है। अब ये √3/2 साइन की कौन सी वैल्यू हो सकती है, टेबल देख के बताओ, या फिर याद तो करना पड़ेगा, इसलिए तो बोला था मैंने कि याद करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू √3/2 जो है वो साइन ऑफ 60 है, क्योंकि साइन 31/2 है, एक ही तो वैल्यू आपको याद करने के लिए बोली थी मैंने, ठीक है। तो ये तो हो गया, मेरा आ गया आंसर, x इक्वल टू 60 डिग्री, काम खत्म, दैट्स इट, इक्वेशन सॉल्व, बराबर है ना। बी देखते हैं, 2 साइन ऑफ x/2 इज इक्वल टू 1, अभी वो x/2 को ब्रैकेट नहीं है बट मीनिंग सेम ही है उसका, ब्रैकेट है ही, बनता है, ठीक है। अभी आप लोग ये 2 तो इधर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन ये 2 इधर शिफ्ट नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, ठीक है ना, याद रखो इस चीज़ को। तो उधर शिफ्ट हो गया, देखते कैसे हो गया। तो साइन ऑफ x/2 इज इक्वल टू 1/2, अभी साइन की कौन सी वाली 1/2 है, साइन ऑफ x/2 इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है ना। अभी तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, x/2 इज इक्वल टू 30 हो गया, तो व्हाट इज x इज इक्वल टू 60, ये हो गया बात, ठीक है ना, समझ में आ गया, गेटिंग इट, होप होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो इसको इरेज कर देते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं, मैं सब कुछ सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग बाद में आराम से बैठ के सॉल्व करो, कॉपी मत करो अभी भी, राइट नाउ डोंट सॉल्व इट, डोंट सॉल्व एनीथिंग, अदरवाइज दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कॉपी, है ना, तो मत करो कॉपी, खुद से बाद में करो। अभी देखो सी क्वेश्चन, देखो सी क्वेश्चन इज √3 साइन थीटा और साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अभी ये हो गई कन्फ्यूजन, क्योंकि एक बात तो सही है कि हम लोग एक्स या फिर इक्वेशन सॉल्व तभी कर सकते हैं जब ये सब कुछ एक सिंगल कोई रेशो में हो, डबल रेशो जैसे साइन एंड कॉस है तो यू कैन नॉट सॉल्व इट, ओके, रिमेंबर दैट, यू कैन नॉट सॉल्व दिस। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इस हम विल ट्राई फॉर ब्रिंगिंग दिस इन वन सिंगल रेशो, ओके, वन सिंपल रेशो। तो मे बी थिंक अबाउट इट, बिकॉज वी हैव डन दिस ऑलरेडी, इस रूट थ्रू को इधर अगर शिफ्ट कर दिया, एंड दिस cos x if I bring here, isn't it I get sin x upon cos x is equals to 1/√3. How about calling sin x upon cos x as tan x, है ना, सही है, 1/√3, ठीक है। एंड नाउ tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 है, तो ये हो जाएगा tan 30, एनी वन कैन से, तो हाउ इज x इज इक्वल टू 30 डिग्री, काम खत्म, है ना, इज दिस क्लियर। तो फाइंड आउट योर वेज टू गेट द आंसर डन, ठीक है ना। अभी मैं इमेजिन करो कि ई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ई वाला क्वेश्चन, ये डी तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना, 45 की वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, साइन 30 पुट करो, टोटल आंसर निकालो, एंड दैट यू कैन राइट एज tan x एंड x की वैल्यू फाइंड करो, सही है, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। देखो 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, वही है रे, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है, इसको स्क्वायर करके लिखा हुआ है, वही है। तो हम लोग इधर शिफ्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3। अभी क्या करते हैं, रूट लेते हैं दोनों का तरफ, या फिर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तो आ जाएगा tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। अभी टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, व्हाट डू आई गेट, tan x इज इक्वल टू 1/√3 एंड विच कैन बी इक्वल टू tan ऑफ 30, तो व्हाट इज x इज इक्वल टू 30 डिग्री, हो गया, बाकी क्वेश्चन खुद से करो।
सॉल्व तो करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। चलो कम ऑन, यू कैन ट्राई ऑल दिस रिमेनिंग क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप आज आपको कंप्लीट करने हैं। बहुत सिंपल सिंपल है, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लगने के लिए क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा दे देते हैं, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, लेकिन 2-2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, करो करो, कंप्लीट करो। डाउट हो तो कमेंट 100% करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, ये जो है ना, दिस क्वेश्चन रेयरली यू गेट इट, मतलब वेरी रेयर। दिस क्वेश्चन आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू विल फाइंड वन अमंग दिस क्वेश्चन इन द पेपर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। है बहुत सिंपल, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डोंट वरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मतलब ऐसे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बाकी आप खुद से करो। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ, ए में सॉल्व करता हूँ। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो बताया नहीं कि करना क्या है। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन करना क्या है। फाइंड ए एंड बी है क्वेश्चन में, क्या करना है, फाइंड कैपिटल ए एंड बी, मतलब एंगल है वो इनफैक्ट, तो वो आपको फाइंड करना है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले इसको यूज करते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी, ऐसे कौन सी वैल्यू साइन की ए प्लस 1 है, साइन की कौन सी वैल्यू 1 हो सकती है। दो ही चीज़ें हैं, एक तो 0 या फिर 90। तो साइन की कौन सी वैल्यू 1 हो सकती है, साइन की 0 0 है, साइन की 90 90 होगा, तो साइन ऑफ 90। तो दिस इंप्लाइज व्हाट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अभी भी तो इक्वेशन सॉल्व किया हमने, 90 डिग्री। आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ आई यूज दिस द सेकेंड इक्वेशन, cos ऑफ ए माइनस बी, कॉस की कौन सी वैल्यू 1 है, 0। ठीक है ना, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। लीनियर इक्वेशन कुछ याद आ रहा है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, याद है, एडिंग, रिमेंबर दैट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करते हैं, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45 आ गया। एक वैल्यू उसमें पुट करो, b मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 45 2। देखो सिंपल है ना, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो, यू ऑल्सो कैन ईजीली ट्राई ऑल द क्वेश्चंस आफ्टर दिस। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक है इसमें, वो मिस्टेक मैं बस आपको बता देता हूँ, सी क्वेश्चन में है। तो क्या है वो, ये जो टैन है ना, टैन, ये टैन की जगह पे हमें कॉट लेना है, दैट्स द ओनली डिफरेंस है। जैसे वाइटनर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, बस कॉट ऑफ ए प्लस बी है, और यहाँ पर भी क्या है, कॉट ऑफ ए माइनस बी, दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट बाकी क्वेश्चन सेम है, इजीली आपको अभी वो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो कैन यू ट्राई, दैट्स इट। आज का दिन के लिए इतना ही काम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूले तो याद कंटिन्यूस करने पड़ेंगे। तो एवरी डे ये जो है, अभी मैं लिस्ट एवरी डे जो आपको मैं बताता हूँ, उसको तो याद करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये टेबल आपको प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा। इसका और एक तरीका भी मैं बता देता हूँ, लेकिन बिफोर दैट आई वांट यू टू रिमेंबर इट। ठीक है, आज के ये इसमें से हमने क्या किया, आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो आपने पूछे थे डाउट। आज भी आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो, कुछ सजेशन दे सकते हो, इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन। इट्स नॉट लाइक के यू आर ओनली गिविंग आंसर्स और ओनली giving me or telling me that I don't know or I know it. Okay, instead of that you can even put some suggestion. कुछ डाउट हो तो डाउट भी पुट कर सकते हो। ओके, तो वो मैं रीड करके आई विल इंक्लूड दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी जो डाउट पूछे कुछ बच्चों ने मुझे, अकॉर्डिंगली आई इंक्लूडेड दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो दैट आई विल डू श्योरली। ये क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करने हैं,
एंड ये क्वेश्चन 100% आपको कंप्लीट करने हैं, बहुत इजी थे। ये जो है ये लीनियर इक्वेशन का यूज़ करके आपको सॉल्व करने हैं। सो ऑल दीज आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मज़ा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू पुट द कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो। हँग झालं ते. ओव्हरलोड कशाला करतो, डिलीट करायचे रे.